Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, I think somebody is in the waiting room. But I don't see anybody over here. Okay, ma'am. So I think we have lot many other students over here, right? But it's only showing 10, 11. So I think last week we have cancelled the class and we didn't had the topics after the means the previous week we have done, right? So circulation in humans is being completed. Am I right? Yes, ma'am. Yes, Got it. ma'am. So now see this, that when the blood is flowing basically in the blood vessels, okay, when there is a flow of blood in the blood vessels, any one of them, you can call it as a veins or arteries or capillaries, anywhere, okay. So when the blood is flowing, we have so many things together when the blood is there, okay. We have plasma, we have white blood cells, we have red blood cells, we have platelets, okay. So we know that what these cells are actually doing and what their function is. So first I will just write down that for RBC, if I say, that means red blood cells or red blood corpuscles, or you can say erythrocytes, can also be named as erythrocytes. Erythro means red in color, okay, the cells which are red in color. Cytes means cells and erythro means red in color, so that part you should know, okay. So red blood cell, red blood corpuscles, erythrocytes, any name can be used regarding this. So first of all, these cells are not having any nucleus inside them, they don't have the nucleus. So ये एक उनकी स्पेशलिटी है. दैट्स वाई वंस दे आर फॉर्म्ड, एक बार जब वो फॉर्म हो जाते हैं, then they will perform their function and then they will complete their life and then they will die. They are not dividing, ओके. आरबीसीज डिवाइड नहीं होते हैं एक बार फॉर्म होने के बाद, बिकॉज दे डोंट हैव न्यूक्लियस इनसाइड देम, सो दैट मेक्स देम समवॉट डिफरेंट. एंड द थिंग इज दीज रेड ब्लड सेल्स आर जस्ट लाइक द वे यू हैव सीन द डोनट्स, आपने डोनट्स खाए होंगे, ठीक है. तो उन्हीं डोनट्स की तरह ये कुछ दिखते हैं, बस ये है कि डोनट्स जो होते हैं वो बीच में से हॉलो होते हैं, आरबीसीज हॉलो नहीं होते हैं, कॉन्केव डिस्क जैसे होते हैं, ठीक है. यू हैव अ स्पेस, अ डिच एट द सेंटर, हियर यू कैन सी वेरी वेल over here. Can you see this? Yes, ma'am. It's very clear that ditch is there in the center and side wise you can see the thick boundary over there. So bit concavity you can have, concave cells you can say, okay. And these cells are made up of two important ingredients, that means they are made up of Fe2 plus iron, okay. And they are made up of
the major component of RBC is hemoglobin. Okay, so globin is a protein. Okay, hem is iron, hemoglobin. ठीक है, so it is made up of hemoglobin. What you can say is a pigment present which gives the red color to the blood, and the thing is what you can say is this particular hemoglobin can carry 4 oxygens at once. That means one hemoglobin will carry 4 O2 at once. एक hemoglobin 4 oxygen carry करता है. That's why we say that RBCs अगर आपकी बॉडी में ठीक से नहीं होंगे तो हेमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाएगा, और जब कंटेंट जो हेमोग्लोबिन कंटेंट है अगर वो कम होता है देन यू सफ़र फ्रॉम एनीमिया. एनेमिक कंडीशंस हो जाती है पेशेंट मतलब इंडिविजुअल की, सो दे बिकम एनेमिक पेशेंट्स. अनीमिया इज़ बेसिकली समवॉट नॉट गुड बिकॉज आपके अंदर अगर हेमोग्लोबिन कम है दैट मीन्स योर ब्लड इज कैरिंग लेस ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, एज पर द रिक्वायरमेंट. So if you carry less oxygen to the organs, then the organs will malfunction. Malfunction मतलब वो काम नहीं कर पाएंगे ठीक से जितना उनको करना चाहिए. You must be surprised to know that हमारे बॉडी में almost 5 liters of blood होता है. ठीक है, अगर 5 liters ऑफ ब्लड है तो हम 5 liters ऑफ एयर भी हमारी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो उसमें से जितना भी ऑक्सीजन है वो ब्लड कैरी करता है. ब्लड में से 70 to 75% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन यूज़ कर लेता है. बाकी का जितना भी बचता है 30% अराउंड इट इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द बॉडी and the organs are performing their function, so they require certain amount of oxygen to perform their function. If oxygen is not available तो उनकी जो मशीनरी है उसमें गड़बड़ हो जाती है. सिंपल है, रेस्पिरेशन से अगर इसको लिंक करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि when you inhale, when you take the air inside your body, inside your respiratory system, तो उससे क्या होता है कि जब हम अच्छे से स्पेशली हम सुपरफिशियल इनहेलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम मेडिटेशन वाली इनहेलेशन की बात कर रहे हैं. तो इफ़ यू इनहेल नाइसली, so if you inhale nicely then what will happen that once the whole air is inside your lungs and each and every alveoli of your lung unit is being filled with fresh air, तो वो सारा का सारा ऑक्सीजन जो है वो आपकी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा. अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी. हर एक ऑर्गन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा, O2 जो है O2 विल बी कन्वर्टेड इनटू CO2. बीच में कोई भी और चीज़ की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए. सो अब सिंपल फंडा कि जितना आप O2 लोगे तो बॉडी को जितने अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा हर एक ऑर्गन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा. बट अगर हम सुपरफिशियल इनहेलेशन करते हैं जो इनफ ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है हमें, ठीक है, एक है कि आप इनहेलेशन ठीक से रेस्पिरेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, एक है कि आपकी बॉडी अनीमिक है मतलब नंबर ऑफ RBC ही कम है. ठीक है, तो बहुत सारी रीज़न है कि ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रहा है. ठीक है, सो व्हाट हैपन्स दैट when oxygen is not reaching to your organs, then what is happening, anaerobic respiration takes part over there. एंड जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो आपने देखा है कि लैक्टिक एसिड और इन सब की फॉर्मेशंस होती है, और एसिड जहाँ फॉर्म होते हैं वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ईजीली इनहेबिटेट कर सकते हैं. इसीलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, रनिंग, वॉकिंग and doing physical activity is very much necessary so that you can respire thoroughly and your body will get the oxygen and everything will be मतलब एक बोलते हैं ना, आजकल बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन करना बॉडी का, सुना है आपने? Have you heard about it? Yes, ma'am. डिटॉक्सिफाई करना
मीन्स आपकी बॉडी से आप टॉक्सिन्स को निकालोगे कैसे? जो एसिड्स फॉर्म हुए हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शंस हुए हैं, आप उनको बाहर कैसे निकालोगे? जैसे ही आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप क्लीन हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए मेडिटेशन या फिजिकल एक्टिविटी या फिर खेलना बहुत ज़रूरी है, दौड़ना भागना। एट योर एज एटलीस्ट यू शुड रन। जो आपके स्पेशली आई जस्ट डोंट नो मच अबाउट they can't be recovered. I mean, yes. See, I am coming to it. I am giving the answer to your question also. ठीक है. So I am just teaching you that why the oxygen is our necessity. क्यों हमको ऑक्सीजन होना ज़रूरी है हमारी बॉडी में. आजकल आप लोग सुन रहे हो कोरोना में ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेटरी नंबर जो कम हो जाता है, फिर उसके बाद पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, then they suffer from severe other diseases and then they die. That is what we hear regarding when we see the news and or from somebody. Okay, तो सिंपल ये है, जो ये इन्फेक्शंस हो रहे हैं आपको, वो कोरोना हो या कोई और रेस्पिरेटरी फैक्ट हो, ठीक है, तो ये जो भी इन्फेक्शंस है इसका मतलब क्या है कि जो हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर रहे हैं. जो फ्रेश एयर, जो ऑक्सीजन जाना चाहिए, जितना एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. एंड दैट लीड्स टू द मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस. वो इन्फेक्शंस को बढ़ा देता है. ठीक है, तो जब ये कोरोना वायरस वगैरह जब बॉडी में अंदर जाते हैं तो इनका काम ही यही है कि आप ऑक्सीजन को मिनिमाइज करो और तभी इन्फेक्शन बढ़ सकता है. इसलिए वो लंग में जाकर फटाफट इन्फेक्शन फैलाए और ऑक्सीजन को कम कर देता है ताकि वो अच्छे से डिवाइड होके फैल जाए. ठीक है, अगर आप जो ये होते हैं मतलब जिनको ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर वो रेस्पायर अच्छे से करे, ऑक्सीजन अच्छे से, इसलिए डॉक्टर्स क्या लगा के देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं ना. अगर ऑक्सीजन सीधा सीधा मिलेगा तो वो इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं हो. दैट इज़ वाई आजकल जो ऑक्सीजन जो है वो इतना डिमांड में है. ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल है एयर में उसके हमको पैसे देने पड़ते हैं. एंड देन द क्वेश्चन कम्स फॉर आरबीसी. देखो, बेसिकली आरबीसी का जो लाइफ है बेटा वो 120 डेज का होता है. ठीक है, सो 120 डेज में ये आरबीसी जो है अपना फंक्शन करते हैं. आफ्टर जैसे 120 डे हो जाते हैं वो अपने आप जाकर लीवर में जाके डंप कर लेते हैं खुद को. लीवर उनका ग्रेवयार्ड है. ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट जो बोलते हैं. ठीक है, जैसे ही उनको 120 डेज हो जाते हैं वो लीवर में जाके खुद को डंप कर लेते हैं और वहाँ पर जाके ख़त्म हो जाते हैं. और नए आरबीसीज जो हैं वो बोन मैरो और बहुत सारे तरीके से बनते हैं. ठीक है, उनके फॉर्मेशन जो है वो अलग तरह से. सो न्यू आरबीसीज बनते रहते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के सारे आरबीसी आज ही 120 डे होगा और आज ही सारे मर जाएंगे. दे आर इन द साइकिल. मतलब सम ऑफ देम विल हैव 120 डे टुडे, सम किसी का कल ख़त्म हो रहा होगा, किसी का परसों ख़त्म हो रहा होगा. तो वो एक साइकिल चलता रहता है. कोई आज बना है, कोई कल बनेगा, कोई परसों बनेगा, तो उसका 120 डे जो होगा वो उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा ना. तो दैट इज़ हाउ दीज आरबीसीज आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन. ओके, एंड नाउ एज वी से दैट नंबर ऑफ आरबीसी और डब्ल्यूबीसी किसी भी सेल का अगर आपकी बॉडी में कम हो जाता है, आपने ब्लड रिपोर्ट्स देखे होंगे तो उसमें आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट लिखा रहता है. ठीक है, एंड एक रेंज भी लिखा रहता है कि मेल्स हैं तो कितना होना चाहिए, फीमेल्स है तो कितना होना चाहिए, एक रेंज भी मेंशन किया होता है. ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मेशंस है ये जो सारे सेल्स के वो आपके प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफस्टाइल और इन पर डिपेंड करता है. अगर वो सब ठीक है तो ये सारी चीज़ें आसानी से बनती रहती हैं. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट रिगार्डिंग आरबीसी इज़. आरबीसीज जो है वो आपके बॉडी ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो दे आर फ्लोइंग इन अ वेरी नाइस चेन. दे आर फ्लोइंग. ये तो बहुत बड़ा सा ब्लड वेसल आपको शो किया है. अगर कैपिलरीज में ये ट्रैवल करते हैं ये सारे के सारे सेल तो एक के पीछे एक लाइन बनाकर ट्रैवल करता है. ठीक है, देन यू हैव रिगार्डिंग
Any question regarding RBCs? I asked one question in the chat box. Okay, which organs form RBCs? आपने बोन मैरो वगैरह सुना है बेटा? Yes, ma'am. वहीं से RBCs के formations होते हैं. So if a person is lacking RBC, ma'am, then it can be recovered by the body itself. Ma'am, no external treatment is required then. No, external treatment is definitely required because if patient is not able to form the new cell, या तो वो डाइट लेने के लिए केपेबल नहीं है, जो दवा लेने के लिए वॉट एवर द थिंग्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब. बेसिकली हमारी बॉडी खुद फंक्शनली बहुत एक्टिव होती है, उसे पता है कि कितने आरबीसी किस दिन में कितने बनने चाहिए, ठीक है, तो वो अपने आप बनाती रहती है. बट अगर आप इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीज और समथिंग लाइक दैट एंड यू कैन नॉट रिकवर देम, then you require external sources like medicines or injections or blood transfusion or something like that. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, what is blood transfusion? Blood transfusion is nothing but you get the same blood from somebody and you just उस ब्लड में से आरबीसीज को आइसोलेट करके आपको दिया जाएगा, ताकि आप वो आरबीसीज को 120 डेज के लिए अच्छे से अपने अंदर रख सको और उसके बाद 120 डेज बाद वापस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है. Okay, ma'am. Okay. How many RBC WBC must be there in our body and how many RBC, what's your question is, how many RBC are there in males and females? You want numbers, you don't need them right now according to your syllabus. Actually, But I want to know. you want to know that, I understand, but do you understand the units right now? उसके units होते हैं बेटा, क्यूबिक mm में होते हैं वो. इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा कि 6 × 10⁻³ क्यूबिक mm, दैट्स हाउ दे आर प्रोवाइडेड. और WBC एक ही नहीं होता है ना, WBC 5 तरह के WBC होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. तो वो 5 WBCs जो है उनका अलग अलग नंबर है सारी चीज़ों के लिए, ठीक है? सो इफ़ यू विश, अगर आपके घर में किसी का ब्लड रिपोर्ट पड़ा होगा तो इसमें एक नॉर्मल रेंज लिखे होंगे, you just go through them, okay? And Okay, ma'am. yes, because you don't need them right now. आप 11 साइंस में आओगे तो ये सब चीज़ें बहुत पढ़नी पड़ेगी. Leave them right now, okay? Okay. So that is what you have to understand. And basically one more thing I will explain that कि जो अनीमिया कंडीशन होती है, अनीमिक मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना, लेस हीमोग्लोबिन, ओके? सो लेस हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली सबसे पहले तो होता है कि हम डाइट में ठीक से आयरन नहीं ले रहे हैं, आयरन नहीं खा रहे हैं, तो उसके वजह से हीमोग्लोबिन जो है काउंट वो कम हो जाता है, ठीक है? सो दैट इज़ हाउ यू शुड अंडरस्टैंड. बट फीमेल्स, इफ वी गो फॉर फीमेल्स, तो फीमेल्स जो है वो बेसिकली ज़्यादा अनीमिक कंडीशन के लिए प्रोन होती है. फीमेल्स को बहुत जल्दी अनीमिया होता है. पहला कॉज ये है कि एवरी मंथ दे गो फॉर दैट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, okay? So lot of hormonal changes and blood loss is there, so they suffer from anemia very frequently, okay? And another thing is that कि एक और चीज़ ये है कि जब basically females when hold the pregnancy and all that, at that time also they suffer from anemic conditions and all that, because they have to carry two bodies at a time, means the one which is growing inside and the self. So that is why they prone to suffer from anemia, and that is very dangerous when they are pregnant and all that. So that part you should understand. So if as a boys and girls, those who are there in this class, you should understand that being a girl you should take care of yourself regarding your diet,
And if you are a boy, just see to that if you have a mother at your home, if you have sisters at your home, and you know them that आपने अपनी मम्मा को सुना होगा कि पैर दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे शी इज ऑलवेज लाइक आई एम टायर्ड, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, ठीक है, आपने ऐसे सुना होगा. तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट शी इज सेइंग बिकॉज शी इज हैविंग अ अनिमिक कंडीशंस के तरफ होते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है. तो आप उनको एक चीज़ सजेस्ट कर सकते हो कि बेसिकली जो आप फूड में जैगरी खाते हो, ठीक है, गुड़, वो अगर डाइट में आप फूड के साथ लेते हो थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं खाना होता है, थोड़ा सा डेली, देन इट इज़ गुड. यू विल नॉट सफ़र फ्रॉम अनीमिया बिकॉज जैगरी इज रिच सोर्स ऑफ आयरन. एंड another thing is that if somebody who is very much at the lower side of the hemoglobin, तो उनको डाइट में जब वो लोग लंच या डिनर कर लेते हैं, पूरा खाना खा लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उनको हैव अ लिटिल 4 to 5 drops of lemon in only a little glass of water. You should not take much amount of water, only 10 ml जितना पानी लो, उसमें 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जो है वो स्क्वीज़ करो, और उसके बाद उस पानी को अपनी मम्मा को या अपनी दीदी को या आपके घर में जो भी आपके सिस्टर्स या मदर जो भी आंटी जो भी हैं, अगर वो इस कंडीशन में, तो उनको ये चीज़ बताओ कि आप खाना खाने के बाद इतना सा अगर पी लोगे ना, तो व्हेन व्हाट हैपेंस दैट विथ लेमन गोज विटामिन सी, और जब विटामिन सी अंदर जाता है डाइट के, तो उसके साथ क्या होता है, जब डाइजेशन होता है ना, तो डाइजेशन के टाइम पर जैसे ही आयरन जो है वो सॉर्ट आउट होगा आफ्टर डाइजेशन, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी वहाँ पर होगा, और विटामिन सी जो है उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में तुरंत ही रिलीज करवा देगा. तो बेसिकली क्या होता है कि किसी किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो जो आयरन और ये सब चीज़ें हैं वो एक्सक्रीशन में चली जाती हैं, दे आर नॉट होल्डेड और एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी. सो दिस इज़ वन मेथड to means obtain the nutrition from your diet and all that. Okay, this is the one thing you can suggest to your the ladies at your home, because you should take care of them first of all your mothers. Okay, so this is the one thing regarding RBC. Okay, some questions are there. Ma'am, if anyone loses RBC, then person's blood pressure will decrease. Nothing is related to blood pressure over here बेटा. ब्लड प्रेशर तो फ्लो करने की स्पीड पर डिपेंड करता है, आपका हार्ट कैसे पंप कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. RBC WBC से ब्लड प्रेशर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. मैम, इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट देन डज द बेबी गेट द ब्लड फ्रॉम द मदर? ब्लड फ्रॉम गोज इनटू द मदर का ब्लड बेबी तक कभी नहीं जाता है, ठीक है. बेबी का ब्लड अपना अलग होता है, मदर का ब्लड अलग होता है. हाँ, न्यूट्रिशन सप्लाई होता है मदर ब्लड से, और वो कैसे होता है, दैट पार्ट यू विल स्टडी व्हेन यू विल गो through the umbilical cord. You have placenta and all that for that. Okay, so nutrition ऑक्सीजन सप्लाई मदर करती है, ब्लड कभी भी मदर से बेबी के बॉडी में कहीं से भी नहीं जा सकता है, ठीक है. And then how will the mother face anemia? She suffers from anemia because actually what happens that when she is carrying a baby, when she is pregnant, at that time she goes through sudden hormonal shocks inside the body. बहुत सारे hormonal changes आ जाते हैं जिसके वजह से blood formation जो है वो कम हो जाता है. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay, that is how the things are happening. So mother और baby blood कभी mix नहीं होता, ये आप बात ध्यान रखो. बट मदर न्यूट्रिशन ज़रूर सप्लाई करती है, ऑक्सीजन ज़रूर सप्लाई करती है बेबी को, ठीक है. तो वो सब चीज़ें हैं, वो अभी आप रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर आएगा तो दैट एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग RBC इज. देन यू हैव WBCs. जस्ट सी दिस दैट यू हैव WBCs. सो WBCs जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और यू कैन से ल्यूकोसाइट्स.
the cells which are white in color. Leuco means white. Okay, so these WBC are of different types. बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेजोफिल, ओके, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं. सो दीज आर ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो दैट्स वाई ये जो WBCs हैं वो डिफरेंट टाइप के WBCs आपकी बॉडी में होते हैं. दे प्ले द रोल इन द इम्यूनिटी एंड ऑल दैट. आपकी इम्यूनिटी लेवल को चेक करता है. ये इसका काम ये है कि कहीं पर भी अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है तो पहले ही उसको जाकर ख़त्म कर दो. बड़े इन्फेक्शंस होते हैं तो ये एंटीबॉडीज़ और उनके साथ मिलकर लड़ाई करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट दे आर द जस्ट द आर्मी ऑफ योर बॉडी. ओके, सो दैट इज़ व्हाट रिगार्डिंग WBC is. Then you have the platelets. Platelets are very can you see they are so small in size as compared to Excuse me, ma'am. Yes, beta. Ma'am, could you please repeat the function of the WBCs once again? Okay, WBC are there for to check out for their for your immunity level. Okay. Okay, ma'am. Okay, fine. So that is what the thing is. Then platelets. Just see them the size. See the size of the platelets. They are so small. And RBC WBC से बहुत छोटे छोटे हैं. ठीक है. So see this. What they do actually. See first of all सबसे first part देखो. जब आपको इंजरी नहीं होता है, मतलब आपके सारे टिश्यूज जो है वो बहुत हेल्दी है, कहीं चोट नहीं लगी है आपको, ठीक है, तो हम ये सब सपोज ये जो है वो स्किन है, ये रीजन जो है वो स्किन है. जस्ट कैन यू सी दिस. दिस थिंग इज योर स्किन शो किया है आपका. ठीक है, मतलब ब्लड वेसल का जो कवरिंग है, उसके बाद मसल्स है, उसके बाद स्किन है, तो इस तरह से टिश्यूज है. ब्लड जो है वो आराम से अंदर फ्लो हो रहा है, सभी फ्लो हो रहे हैं. RBC फ्लो हो रहे हैं, WBC फ्लो हो रहे हैं और प्लेटलेट्स फ्लो हो रहे हैं. ठीक है, सभी आराम से फ्लो हो रहे हैं. नाउ सडनली आपको चोट लग जाती है. चोट लग जाती है तो टिश्यू डैमेज हो रहा है. ठीक है, जैसे टिश्यू डैमेज हो रहा है तो क्या होगा, ये जो सारे प्लेटलेट्स हैं ब्लू वाले, ये सभी के सब यहाँ पर एनकाउंटर करेंगे आकर. ठीक है, देखेंगे इंजरी जो है वो कितनी बड़ी है, क्या है, और है ना अब इसको कैसे ठीक करना है, हम ब्लड को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्या करना चाहिए, वो सारा डिटेक्शन होता है. और उसके बाद हम बोलते हैं एडेशन. एडेशन मतलब चिपकना. ये जो प्लेटलेट्स है वो जाकर इस सरफेस पे जाके खुद को अटैच करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अटैच करने की कोशिश करते हैं. क्यों? अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं समझाती हूँ कि बेसिकली जब भी हमको चोट लगती है ना, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो मतलब हमारी सराउंडिंग्स है और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो एनवायरनमेंट है, जो टेम्परेचर है, सब एक साथ रोल प्ले करते हैं चोट को ठीक करने में. ठीक है, और जब भी आपको चोट लगती है या जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ ब्लड लॉस हो रहा है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये 13 इन नंबर है, मतलब इनके 13 टाइप्स हैं. और ये 13 जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक्टिव होते हैं. जब वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जैसे हम कैरम खेलते हैं ना, कि हमने अगर एक को ट्रिगर किया तो वो दूसरे को जाकर हिट करेगा, उसके हिटिंग की वजह से जो उसके आगे वाला है वो अपने आप चेन रिएक्शन, सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन. ठीक है, चेन कह सकते हो आप. सो दैट इज हाउ इट विल एक्टिवेट द थिंग्स. मतलब 13 पार्टिकल्स हैं उसके, जो 13 जो वो चीज़ें हैं वो एक के बाद एक्टिवेट होती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद वो इस इंजरी को ठीक करती है. तो अगर आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उन बुक्स में आपको ऐसे नाम देखने को मिलेंगे, लाइक थ्रोम्बिन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ऐसे कुछ कुछ नाम देखने को मिलेंगे अगर आप कुछ और बुक्स रेफर करते हो तो. आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल फॉर दिस, बट ये थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिन का काम क्या है, देखो आपने देखा होगा जब आपको बहुत तेज कहीं पर, जैसे सपोज यहाँ चोट लग जाती है, खून आ रहा है और
जब आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, तब आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं टच मत करो उसको, टच मत करो, बोला सुनते हो ना, चोट को Yes, बोलते हैं। ma'am. यस। Yes, तो ma'am. सबसे पहले टच करने से क्यों मना किया जाता है? द रीज़न इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो इंजरी है, अगर आप वहाँ पर दूसरे हैंड से टच करोगे तो अगर उस हाथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ Germs. हाँ जर्म्स है, उनकी एंट्री जो है वो बहुत इजी हो जाती है, तो वो वहाँ से एंटर हो सकते हैं। सो यू डोंट हैव टू टच द इंजर्ड एरिया। सेकेंड थिंग रिगार्डिंग दैट इज दैट, ऐसे बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि जब ब्लड धीरे धीरे रुकता है, जब रुक जाता है, तो एक हल्का सा वाइटिश लेयर जैसा फॉर्म होना शुरू होता है, देखा है? Yes, ma'am. ठीक है। Ma'am, platelets. हाँ, ये प्लेटलेट्स जो है वो उस वाइटिश लेयर को फॉर्म करते हैं। वो वाइटिश लेयर जो होती है वो एक्चुअली जैसे आपका वो वाइट बैंडेज होता है ना जो डॉक्टर्स लगाते हैं, जो जाली जाली वाला, इस तरह से बैंडेज होता है एकदम वाइट कलर का, Yes, ma'am. बस उसी तरीके से ये जो बैंडेज है वो इसी से इंस्पायर हुआ है, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी बैंडेज बनाती है, तो जब वो उस इंजर्ड पार्ट को कवर करती है तो ये प्लेटलेट्स है ना वो इस तरीके का मैश लाइक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से उस जगह को ढका जा सके। जब वो पूरी तरह से कवर हो जाता है वो उस जगह को फिर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो अंदर नॉर्मल किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे स्लोली एंड लेटर ऑन वो जो पार्ट है वो धीरे धीरे थोड़ा हार्ड हो जाता है। आपने देखा होगा चोट लगी होगी, आज लगी है तो आज थोड़ा फ्रेश होगा, सॉफ्ट होगा, तो कल सुबह उठोगे तो ब्राउन ब्राउन हार्ड हार्ड एक लेयर बन जाएगा, देखा है? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो वो क्या होता है कि सेल, ये जो आप देख रहे हो ना ये ब्लू वाले जो प्लेटलेट्स हैं जिस तरीके से, ये वाला रहेगा, ये इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर आके कि वो हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो तब तक रहता है जब तक कि ये जो सॉफ्ट एंडोथेलियल और एपिथेलियल टिश्यू है वो हील नहीं हो जाता है। जैसे ही वो हील हो जाते हैं वो अपने आप अलग से निकल के गिर जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द थिंग इज डन बाय द प्लेटलेट्स। और ये चीज़ समझो बेटा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, मतलब जैसे ही वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आता है ब्लड, मतलब एयर के कांटेक्ट में आता है जैसे ही, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लॉट होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाएगा? क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है उसका, मतलब वो जमने लग जाता है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, वो जमने लग जाता है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ब्लड की एक प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए जब भी हमें इंजरीज होती है तो आपने अगर कभी आप बहुत ध्यान से अगर न्यूज़पेपर या उसमें पढ़ा हो कि सीवियर इंजरी, सीरियस इंजरीज, ऐसा कुछ, तो उसमें मेंशन किया होता है कि इंटरनल इंजरी, एक ऐसे वर्ड यूज होता है, सीवियर इंटरनल इंजरीज। तो सीवियर इंटरनल इंजरीज मतलब क्या है? हमारा जो ब्लड है वो एक सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है, मतलब आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड उन्हीं के थ्रू फ्लो हो रहा है, हर ऑर्गन तक पहुंच रहा है और वापस हार्ट तक आ रहा है, ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी में, ठीक है। बट अगर ये ब्लड वेसल्स जो है वो इंजर हो जाते हैं और ब्लड जो है हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, मतलब चोट लगी है लेकिन बाहर कोई टिश्यू डैमेज नहीं हुआ है, अंदर ही अंदर कोई डैमेज हो गया है जिसकी वजह से ब्लड वेसल टूट गया है और ब्लड जो है वो इंटरनली फ्लो हो गया है, तो बोलते हैं कि अगर इंटरनली फ्लो हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो जाना। तो ब्लड क्लॉटिंग जो है दैट्स नॉट गुड इंटरनली, बिकॉज जैसे ही क्लॉट होगा तो वो फ्लो को ब्लॉक करेगा, फ्लो को ब्लॉक करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट जो है वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, और जब पंपिंग नहीं होगा तो फिर फेल हो जाएगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके। सो Yes. Yes. इंटरनल Yes, क्लॉट्स ma'am. नहीं होने चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि जब सर में, आपने ब्रेन हिमोरेज सुना होगा, जो कि नॉर्मल लोग बोलते हैं हैमरेज हुआ है,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक Brain है, hemorrhage. Yes, ma'am. इट्स नॉट हैमरेज, इट्स हीमोरेज। ओके, हीमोरेज मतलब क्या कि जब भी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं या ऐसी कोई फिजिकल हार्म होती है बॉडी को, तो स्पेशली हेड, स्कल जो हमारा है वो टफेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, उसमें डैमेज अगर किसी वजह से होता है तो ब्लड वेसल्स जो है वो अंदर ही फट जाते हैं। अंदर फटने की वजह से क्या होता है, ब्लड का एक ही रूल है, Clotting होता है। हाँ, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं जम जाऊँ, तो वो क्या, ब्लड जो अंदर इंटरनली हेड में फैल गया है वो अपने आप खुद को जमा लेता है, और जब वो जमा लेता है तो वो क्या होता है, पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और जो इंडिविजुअल है वो वहीं मर जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्लड हीमोरेज, इट्स नॉट हैमरेज। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Excuse me, ma'am. यस बेटा। Ma'am, what is cerebral attack? सेरिब्रल अटैक, सेरिब्रल क्या होता है? Is it a kind of fluid? सेरिब्रल आपके ब्रेन का एक पार्ट है बेटा, ठीक है। तो जैसे आपको हार्ट अटैक होता है वैसे ही सेरिब्रल अटैक्स होते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं या ज़्यादा काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से एक शॉक लगता है बॉडी को, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल अटैक्स। Okay, ma'am. ओके, सेरिब्रम आपके ब्रेन का एक पार्ट है, आपको चैप्टर ब्रेन शायद अभी इस साल सिलेबस में, आई थिंक आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हट गई है, तो आप डोंट वरी, वी विल सी टू देम ऑल्सो। फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द सिलेबस, देन हम वो भी चीज़ें पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट रिगार्डिंग द प्लेटलेट्स, दैट इज़ व्हाट रिगार्डिंग द ब्लड क्लॉटिंग। इस तरीके से ब्लड हमारी बॉडी में क्लॉट होना ज़रूरी है जब एक्सटर्नल इंजरी हो, बट इंटरनल इंजरीज में डेथ हो जाता है, क्योंकि उसको जब तक वो चीज़ समझ में आती है तब तक ब्लड पूरा फ्लो हो जाता है और पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन, बिकॉज तुरंत ही सीधी से फंडा है कि ऑक्सीजन ब्लॉक हुआ, ब्रेन ने काम करना बंद किया, ब्रेन फेल, हार्ट फेल, द ह्यूमन इज डेड। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is how the things are Yes, happening. ma'am. Okay, all these things whatever you are studying is a bit superficial, ये इतना easy नहीं है blood clotting जो है, but still the thing you should understand that this is how platelets are going through and they are responsible for these repairing and repairing mechanism and all that of our body. Okay, so this is the thing, just go through your textbook regarding platelets, RBC, WBC जो थोड़ा है देख लो, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे पूछ लो, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अच्छा, आपको ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस चाहिए? Yes, ma'am. ओके, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस जो है बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, लिखना है आपको, फिर भी क्या करो? Yes, ma'am. फाइन, डू, आई विल डू वन थिंग, मैं आपको इसका जो एक नोट है वो आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूँ, Okay, ma'am. ठीक है। जस्ट यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डू आस्क मी, तो फिर उसके बाद हम लिम्फ वगैरह पढ़ेंगे। How does tetanus affects our body? टेटनस, Yes, ma'am. Tetanus. टेटनस जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, टिटैनी करके। तो जब आपको कभी भी चोट लगती है ना, स्पेशली आयरन या ऐसे ओपन Yes, ma'am. एरियाज में, तो वहाँ Yes, पे ma'am. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके स्पोर्स रहते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, इसलिए जब आपको चोट वोट लग जाती है तो हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी।
तो उससे होता क्या है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुरंत कभी नहीं काम करता है, इट टेक्स टाइम। ओके, एंड हो सकता है कि आज के 10 साल बाद, आज के 15 साल बाद चोट आपको आज लगी हो, लेकिन आज के 10-15 साल बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाए, और उसके बाद वो आपकी बॉडी में, तो सडन व्हाट यू विल से एक तरह से वेरी सीवियर पैरालिसिस अकर्स व्हेन देयर इज अ इफेक्ट ऑफ टेटनस। ओके, इतना It has cure. It has any cure. that Or is cure. I think you must be having the tetanus injections and all that. yes, ma'am. जब चोट Ma'am, लगती है once it has formed ma'am in the body, then जब बॉडी में जब वो फॉर्म कर जाता है तब क्या होता है? बॉडी में फॉर्म जब टेटनस हो जाता है तब उसका कोई क्योर है? बेसिकली टेटनस हो जाना, जब भी टेटनस इफेक्ट दिखाता है अपना, तब कोई क्योर नहीं है, क्योंकि डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसलिए बोलते हैं कि जब ऐसी ऐसी जगह पर कहीं चोट लगती है तो टेटनस के इंजेक्शंस ले लो, क्योंकि वो ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कि आज आपको चोट लगी तो 2-3 दिन में आप बीमार पड़ जाओगे। इट कैन शो द इफेक्ट आफ्टर 10 years ऑल्सो, 15 years ऑल्सो। Okay. Okay, so it's a big thing, big type of functionality it had, so that part you should know. You just go through your textbooks beta regarding these blood and all that. If you have any doubts, just let me know. Any word which you have not understood. Excuse me, ma'am. Yes, Pitna? Ma'am, lymphocytes and leukocytes are the same things. No. लिम्फोसाइट्स, जो ल्यूकोसाइट मतलब WBC, और लिम्फोसाइट उसका एक टाइप है। Okay, ma'am. आप सभी को क्या जॉइनिंग में कुछ इशू हो रहा है क्या? Some of them are facing and they're messaging in the group. Yeah, that's what I got right now. मैम सुबह से प्रॉब्लम में मैं भी था, मुश्किल से आके ज्वाइन किया फिर। Okay, fine. Okay, one question is there. If there is a leakage of blood in our body, then there is a loss. अच्छा, कैसे लीकेज होगा आयुष? मैम कट्स कट्स, अच्छा, कैसे? जो और एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स, ओके। देखो, छोटे मोटे कट से प्रेशर पे कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। बहुत हेवी इंजरी होने से अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो फिर प्रेशर डिफरेंस शो करेगा। छोटी मोटी चोट से कुछ भी नहीं होता। मैम फिर ऑपरेशंस में तो होता होगा। ऑपरेशंस आर डिफरेंट थिंग बेटा। आपकी बॉडी अगर
अंडर ऑपरेशन है, अंडर सर्जरी है, तो उसको ओपन किया हुआ है, ब्लड की कितनी सारे चीज़ों पर वर्कआउट किया जा रहा है, तो आपका प्रेशर मेंटेन करना ज़रूरी है, नहीं तो डॉक्टर जो है उसको रीगेन नहीं कर पाएगा जो चीज़ कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए क्या मैम वो लोग ब्लड चला देते हैं? मैम वो लोग कोई पंपिंग मशीन वगैरह कुछ लगाते हैं ना, देखो, ये देखा था एक्चुअली। हाँ, डिस्कवरी चैनल पर सी दिस, देखो पंपिंग, आप किस चीज़ की ऑपरेशन देखे हो पहले तो वो मुझे नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ समझो, वेन यू आर अंडर द सर्जरी, वेन यू आर अ पेशेंट और आपके ऊपर डॉक्टर अगर परफॉर्म कर रहा है तो उसको आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे, मतलब आपका हार्ट रेट, पल्स रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड फ्लो, आपका किडनी वर्किंग, हर चीज़ को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाएगी तो ऑपरेशन के बाद उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है, पहली चीज़ ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तब प्रेशर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रेशर डेवलप किससे होगा अगर ब्लड नहीं होगा तो, छोटी मोटी चोट से कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं आता है। अब समझ आया? If the pressure of our blood in our arteries increases too much, then there is a condition under which artery or vessel may burst. Yes, definitely it can burst. अगर आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज में प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू पीपल नो, बट यू मस्ट हैव सीन, किसी किसी की आईज होती है उसमें जो कैपिलरीज होती है रेड रेड, वो बहुत क्लियरली दिखाई देती है, देखा है? मैम गुस्सा होने पर? नॉर्मली नो नो मैम। मैम। गुस्सा होने पर नहीं, नॉर्मली किसी किसी मैम की, आई के भीतर में? हाँ अंदर, तो वो तो तब कैपिलरीज होती हैं जो ब्लड का वो इधर से उधर काम कर रही हैं, बट समटाइम्स व्हेन यू रब इट तो कई बार रेड आई हो जाता है, होता है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. when you rub it severely then sometimes red eye occur, और वो चीज़ क्या होती है कि कुछ छोटी मोटी कैपिलरी कहीं बर्स्ट हो जाती है और उसकी वजह से वो ब्लड जो है वो उसको रेड आई कर देता है, एक वजह हो सकती है। रेड आई बहुत तरीके से होती है, रेड आई इन्फेक्शन की वजह से भी रेड आई हो जाता है, ठीक है। तो एक ये है पॉसिबिलिटी, तो डॉक्टर्स इसलिए बोलते हैं रब मत करो, आप जोर जोर से रब करोगे सबसे डेलिकेट रीजन है, कैपिलरीज बर्स्ट हो जाएंगे, ब्लड जो है आई में फ्लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईज खराब हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आर्टरीज फट जाएंगे ना बेटा। Yes मैम। What will happen if it bursts? what happens when it burst? सिंपल है, ब्लड अपना एक काम करेगा कि मैं तो बाहर आ गया हूँ तो मुझे क्लॉट करो, वो तो क्लॉट करने लग जाएगा और बॉडी उसको फाइट करने लग जाएगी, बॉडी सोचेगी कि ये क्या हो गया, वो अपना रिपेयर सिस्टम लेके वहाँ पहुँचेगी और उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ठीक है, समझ आया? Yes मैम। ओके ओके। पीएच रेगुलेशन, पीएच क्या होता है? मैम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सिंपल सी बात है। पीएच जो है इट्स नथिंग बट हाइड्रोजन आयन मीन्स H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक कंडीशन डिसाइड करता है, ठीक है। तो 1 to 14 का जो स्केल है, तो आउट ऑफ इट 1 to जो 7 तक है वो, Ma'am, 0. हाँ सॉरी 0 to 14, सॉरी माय मिस्टेक, 0 to 14 का एक स्केल है जिसमें 0 to 7 तक आप आ जाओगे, मतलब 6.9 तक आओगे तो वो कंडीशन It's acidic. एसिडिक बोलते हैं। यस मैम। 7 is neutral. 7 is called neutral
and after that alkaline. फिर basic होता है। 7.1 से ही अल्कलाइन कंडीशन शुरू हो जाती है, बेसिक। basic. ठीक है, तो वो हाइड्रोजन आयन कौन सा, वो आप लॉग पढ़ते हो, लॉग पढ़ा है आपने आपके सिलेबस में? यस मैम, लॉग से वो निकलता है। Yes, ma'am. तो log ऑफ H प्लस आयन, log 10 ऑफ H प्लस आयन, ऐसे सर करके एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन क्या वो लॉग? लॉग अच्छा, मुझे Yes, नहीं ma'am. पता आपका मैथ का सिलेबस लॉग है या नहीं है, बट आपने लॉग सुना होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। यस मैम केमिस्ट्री में हाँ, यस मैम। तो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे लॉग निकालना सीखा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो इज समथिंग मैम डिफरेंट। लॉगरिथम। Yes, ma'am. Logarithm. Trigo is something very different. Okay, so that is what you should understand. Have you gone through your textbooks? Are there any doubts, girls? No, ma'am. नो मैम No, ma'am. Good. No, ma'am. Shall we proceed then? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see this lymph. अच्छा, अब lymph क्या है? ठीक है, एक चीज बहुत अच्छे से समझो। कैन यू सी द ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स ओवर हियर? आपके स्क्रीन पे Yes, दिख रहा है, ma'am. ठीक है, दोनों दिख रहा है। ब्लूइश जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। दोनों आपस में मीट हो रहे हैं, और उनका जो एक्सचेंज है वो सब चलता रहता है। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो है वो आपस में अटैच रहते हैं एक दूसरे से। बट इन बिटवीन कैन यू सी अ ग्रीन वन, जो एक अलग से नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये भी वेसल्स है, ये पैरेलली ब्लड वेसल्स के साथ रन करते हैं, उन्हीं के साथ साथ रहते हैं। क्यों उन्हीं के साथ रहते हैं? क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे, ये एंडोथेलियल टिश्यू से बने हुए हैं। ठीक है, ये एंडोथेलियल टिश्यू जो है वो एक तरीके का शीट है, जैसे कपड़ा होता है, बस उस तरीके से एक शीट है, और वो शीट जो है उसका कवरिंग है इस ब्लड वेसल का। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है ना बेटा, जब इसके अंदर के जो हमारा प्रेशर है उसके अकॉर्डिंगली जब ब्लड अच्छे से जा रहा है उसमें से, तो ये शीट में से बहुत सारी चीज़ें ऊज आउट होती है। प्लाज्मा निकल आता है, कभी कभी कुछ WBC निकल आते हैं जो छोटे वाले होते हैं, वो कुछ बाहर आ जाता है ये शीट से। आपने जैसे मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूँ इस चीज़ का, तो एक बहुत सिंपल सा ये आपने मिठाई बनते हुए देखा है कभी? No, ma'am. यस मैम देखा है जलेबी बनते हुए यस मैम मैम जलेबी देखे। देखी है ना? Yes, ma'am. अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं, क्लोथ में वो सारा बैटर भर के और फिर ऐसा ऐसा ऐसे प्रेस करते हैं उसको, देखा Yes, ma'am. है ना? Yes, तो बेसिकली तो उस होल से जो है वो बैटर निकल रहा है और वो सब चीज़ कर रहा है, बट देखा है उनको जब जोर से प्रेस करते हैं तो कपड़े में बहुत सारी जगह से बैटर जो है थोड़ा थोड़ा ऊज आउट होता है, या पानी Yes, ma'am. या Yes, ma'am. लिक्विड जैसा ऊज आउट हो जाता है। सिमिलरली ये ब्लड वेसल्स भी ब्लड जब फ्लो करता है तो ये वेसल जो है वो बहुत ही थिन टिश्यू, बहुत ही एक बहुत वैसे टिश्यू से बना है जो पोरस है, तो उसमें से प्लाज्मा WBC ऐसी चीज़ें कई बार ऊज आउट हो जाती हैं, तो वो बाहर आ जाएगी। तो उसको क्या किया जाएगा, तो वो बाहर आ जाने के बाद उसको कलेक्ट कर लेती है ये लिम्फ कैपिलरीज, ये जो है वो उसको कलेक्ट कर लेती हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर निकली है सारा इकट्ठा कर लेती है, और वो क्या करती है, वो उसको अपने अंदर फ्लो करवाती रहती है, और जहाँ पर भी उनको सूटेबल कंडीशन लगता है वो उसको ब्लड को वापस भी दे देती है। तो ये एक तरीके का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जैसा ही, ऑस्मोसिस नहीं डिफ्यूजन जैसा कॉन्सेप्ट है, कि थोड़े जब चीज़ें बाहर आती हैं तो उसको कलेक्ट लिम्फ कैपिलरीज करके और फिर उसको पूरे बॉडी में मूव होता है और उसके बाद उसको वापस दे दिया जाता है। दिस इज हाउ द लिम्फ इज फॉर्म्ड। ठीक है, इस तरह से लिम्फेटिक टिश्यू लिम्फेटिक फ्लूइड बनता है, और ये जो फ्लूइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखता है नए सेल्स बनाने में, ये हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी में, और ये हेल्प करता है आपकी बॉडी के इन्फेक्शंस को चेकआउट करने में। अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन वगैरह होता है तो ब्लड जो है वो अपना कचरा और सारी चीज़ें वो रिलीज आउट करता है, उनको पूरा तरह से फिल्टर करना, उनको सही जगह पर पहुंचाना,
कौन सी चीज़ को डीजनरेट करना है, ख़त्म कर देना है, वो सब काम लिम्फ कर सकता है। ठीक है, सो लिम्फ जो है वो टिश्यू स्पेसेस में यूं ही रिलीज हो जाता है, जिसको कलेक्ट करने वाली होती है लिम्फ कैपिलरीज। सी दिस, जस्ट होल्ड ऑन। Lymphatic capillaries. यस, लिम्फ कैपिलरीज, ये जो है ये उसको कलेक्ट, ये जो देखो ये जो जगह है, आप पीछे येलो बैकग्राउंड देखो, वो टिश्यू है, देखो सेल्स बने हुए हैं छोटे Yes, छोटे, ma'am. है ना, Yes, ma'am. तो वो वहां पर वो ऐसे ही फ्लो हो रहा है लिम्फ, तो उसको कलेक्ट करने का काम है ये लिम्फ कैपिलरीज, वो उसको सक कर लेती हैं एक्स्ट्रा जितना भी होता है। सी दिस इज आवर लिम्फेटिक सिस्टम। इस तरीके से हमारा जो ये लिम्फेटिक सिस्टम है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये एक अलग ही टाइप का नेटवर्क है हमारी बॉडी में, अपार्ट फ्रॉम कैपिलरीज, अपार्ट फ्रॉम आर्टरीज, अपार्ट फ्रॉम वेन्स और अपार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ऐसे ही नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी में है, बट लिम्फेटिक सिस्टम इस तरीके से जाता है। सो कैन यू सी, हर देखो थोड़े थोड़े ग्रीन ग्रीन डार्क डार्क डॉट्स है, तो ये Yes, क्या ma'am. है कि ये एक तरीके के नोड है, मतलब थोड़ा सा लिम्फ वेसल आगे रहता है, फिर एक छोटा सा एक गांठ जैसा है, फिर आगे बढ़ता है, फिर गांठ के एक नोड के जैसा है, फिर आगे बढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पर आपको नोड्स देखने को मिलेंगे, और ये नोड्स जो होते हैं ये चेक पॉइंट्स होते हैं। इनका इनका काम है सारी फिल्ट्रेशन को चेक करना। अगर इन्फेक्शन घुस गया है तो पूरे सिस्टम को अवेयर करना कि भाई इन्फेक्शन आ गया है, जहाँ हो सकता है तो वो खुद ही वहाँ पर ही उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है, अगर नहीं कर पाता है तो बाकी सारे सिस्टम को अलर्ट कर देता है। सो ये जहाँ जहाँ नोड्स हैं वहाँ वहाँ चेक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। देन आपको कुछ यहाँ पर लेबलिंग्स एक्स्ट्रा है, वो तो आपको नहीं पढ़नी है, बट देखो ये लिम्फ नोड्स लिखा हुआ है, लिम्फ नोड्स बहुत सारी जगह पर लिम्फ नोड्स लिखा हुआ है। सी दिस, है ना। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं देखना है, ये सब देखने की अभी ज़रूरत नहीं है, नो नीड। सो दिस इज हाउ द लिम्फेटिक सिस्टम इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर बॉडी। नाउ सी दिस, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, कुछ जो ऑर्गन्स है वो इस लिम्फ रिलीज होके आ रहा है और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू आ रहा है, उनको कुछ थोड़ा बहुत हैंडल करता है। तो कौन से ऑर्गन्स हैं वो देखो। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है थाइमस, कैन यू सी थाइमस। सो थाइमस कहाँ है, सी बायो पढ़ रहे हो, अपनी बॉडी में हर चीज को डिटेक्ट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सो जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट ओवर हियर, ओके। सो इन द सेंटर, एट द सेंटर, जहाँ पर ये जो आपका नेक का जो सेंटर है, ठीक है, इन द सेंटर यू हैव वन बोन दैट इज कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। यहाँ पर हार्डनेस फील होती है आपको एक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस वहीं पर लोकेटेड है एक थाइमस ग्लैंड, छोटा सॉफ्ट सा ग्लैंड होता है जो लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये थाइमस जो है ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ऑर्गन है, ये आपके हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, ये आपके ये जो लिम्फ आ रहा है, जितना भी लिम्फेटिक फ्लूइड आ रहा है उसको फिल्टर करना, उसको सेग्रीगेशन करना, सब कुछ मिक्स आ रहा है तो उसको हटाना क्या काम की चीज़ है, वो सारी चीज़ें ये थाइमस जो है वो मैनेज करता है। ठीक है, देन यू हैव रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो क्या होता है, आई थिंक दोज हु आर द नॉन वेजिटेरियन पीपल दे नो इट इन अ बेटर वे। ठीक है, सी दिस, देखो आपके लेग पर बताया हुआ है, लेग रीजन पे ये बोन दिखाया है, क्योंकि लंबा बोन है ना, थाई वाला जो है द Yes, ma'am. लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी। सो सी दिस, दैट जो बोन होता है लाइक दिस, उसका जो ये टिप मोस्ट पार्ट है, ये वाला पार्ट, बोन मैरो क्या है, फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बोन। ठीक है, उसे बोन मैरो बोलते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर इस बोन मैरो का कलर होता है रेड। रेड मतलब
ये बनाता है आरबीसी, ये बनाता है बहुत सारे एंटीबॉडीज, ये बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करवाने का काम करता है। बाकी का जो बोन मैरो है यहाँ पर वो येलोइश हो जाता है, तो वो इतना एक्टिवेटेड नहीं है। रेड बोन मैरो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, और फिलहाल आपकी जो एज है इसमें बोन मैरो सबसे बेस्ट कंडीशन में होता है अभी, ठीक है। इट इज़ राइट नाउ आपकी जो एनर्जी लेवल है, आपका जो स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्टेमिना वगैरह, वो कोई और मैच नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर हैविंग राइट नाउ जो ये बोन मैरो है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और अभी बहुत अच्छी एकदम यंग है, ठीक है। तो ये बहुत जैसे जैसे ओल्ड हो जाता है ना आदमी, वैसे वैसे ये रेड बोन मैरो जो है वो खत्म होने लगता है, ठीक है। तो बोन मैरो मतलब फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द बोन, डू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थाई बोन का नाम दिया है मुझे फीमर, ठीक है। आप 11 साइंस में आ जाइए, मैं आपको स्केलेटल सिस्टम में 206 हड्डियां लर्न करवा दूंगी सारी की सारी, ठीक है दीपनील? Yes, ma'am. गुड, ठीक है। आप मेरे साथ गाना गा सकते हो 206 हड्डियों का, मैं आपको रख के अभी पूरा गिनवा सकती हूँ, so that you can do, but come in the 11 science then we will do this. Okay, so this is what the thing is regarding primary lymphoid organs है, मतलब सबसे पहले यही एक्ट करते हैं लिम्फ फ्लूइड पर। देन यू हैव दिस वन, नेक रीजन पर आपके लिम्फ नोड्स है, ये सेकेंडरी चेक पॉइंट्स है। देन आर्म प्रिंट्स अंडर योर आर्म्स, हियर भी आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, सो दैट पार्ट यू शुड नो, ठीक है। देन स्प्लीन, स्प्लीन भी जो है वो ब्लड वेसल्स और इन सब पर, ये जो WBC जो मर जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, उनका रिपेयरिंग करना, उनका बोलते हैं ना उनकी सर्विसिंग करना, कुछ भी डैमेज हुआ है सिस्टम उसको फिल्ट्रेशन करना, ये वो सब ये स्प्लीन करता है। सो स्प्लीन इज ओवर हियर। देन पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस आप बस ये समझो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे ऐसे पैच वाले रीजन होते हैं जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब ये लिम्फेटिक, मतलब आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है उसको हील करने में काम करते हैं। देन ग्रोइन इंग्यूनल लिम्फ नोड्स, मतलब जहाँ आपके दो लेग्स हैं जहाँ पर, तो इनर साइड पे अगर आप अपनी बॉडी के इनर साइड से टच करोगे उस एरिया को हम बोलते हैं ग्रोइन, ठीक है। तो वहाँ पर भी लिम्फ नोड्स रहते हैं जो इन्फेक्शंस वगैरह को चेकआउट करते हैं। सो दीज आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर एंड यू शुड नो कि पहली बात तो इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखो। थाइमस, बोन मैरो इन योर थाई, जो थाई बोन से मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और बोन में रेड बोन मैरो नहीं होता है, बट जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उनमें रेड बोन मैरो ज़्यादा होता है, बस इतना फर्क है। देन सेकेंडरी अगर आप देखो तो स्प्लीन, तो आप अपने इस तरफ हाथ रख के चेकआउट कर सकते हो, स्प्लीन स्टमक के थोड़ा सा पास ही में होता है। आर्म प्रिंट्स, ठीक है। नेक एंड ग्रोइन, ग्रोइन मतलब आपके दोनों पैरों के बीच में, ठीक है, जस्ट आफ्टर, इट्स नॉट वेरी मच नियर टू योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बिलो टू इट। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. So Excuse this, me, ma'am. yes beta, Ma'am, what is the difference between that spleen and the kidney? Ma'am, it looks similar. ओके, पहली बात तो किडनी दो होती है, स्प्लीन एक ही होता है, Okay, ma'am. ठीक है। और किडनी है जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है और यूरिन फॉर्म करती है, ठीक है। और स्प्लीन जो है वो यूरिन वगैरह में उसका कोई काम नहीं है, Okay, ma'am. ठीक है। सो दिस मेजर डिफरेंस ये आप मेंशन कर सकते हैं। और कुछ, और कोई क्वेश्चन? Ma'am, like if a kidney gets damaged and the other kidney is there as a substitute, ma'am, so what will happen if one spleen gets damaged? स्प्लीन एक ही है बेटा, Means no other organ can perform its part. अब जैसे लीवर आपके पास एक ही है, वैसे स्प्लीन एक है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो या तो उसको ठीक करो, ठीक है। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, काम चलता है कि
हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, स्प्लीन ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें काम होती हैं, बट वो पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि आपको डोनर नहीं मिलता है आपके जो आपसे मैच करे। और दूसरी चीज़ है कि ये सब चीज़ों को ट्रांसप्लांट करने से जो जो रिजल्ट है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि इसके बाद हाँ इंसान दौड़ने भागने लगेगा और एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि वो ठीक होगा नहीं होगा, क्या फ़ायदा होगा। वी डोंट से, वी कैंट से एनीथिंग। सो अगर आपके ऑर्गन्स को कोई डैमेज होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, और तो वो सारी जानकारी अपने पास रहनी चाहिए। ठीक है। ओके मैम। और कुछ? एनीथिंग? Anything else? No मैम। Nothing? Nothing? सोच लिया कुछ भी नहीं है? No, ma'am. What are the notes that we will write under lymph? Read your textbook बेटा, पहले अपने टेक्स्ट बुक्स रीड करो। You are in class 10th. Try to make out your understanding and your textbook part, put them together and write the notes. And I think CBSE NCERT पे तो काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर ही, जिस पे बुक्स है अवेलेबल, है ना? देखो आपको अगर टिपिकल एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना ऑनलाइन, एनसीईआरटी की वेबसाइट है ना, पता है Yes, कि ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो एनसीईआरटी की वेबसाइट जो है उसमें बुक्स हैं, उसमें जर्नल्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल बुक्स हैं। तो आप क्लास 10th को क्लिक करो, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो आप उसमें से जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नोट्स का वो आपका फुलफिल हो जाएगा। ठीक है। बट एक्स्ट्रा थिंग रिगार्डिंग अभी एक्चुअली मैं आपको फोर्स क्यों नहीं कर रही हूँ रिगार्डिंग टू लर्न समथिंग एक्स्ट्रा। वी डोंट नो हाउ द बोर्ड्स विल बी दिस ईयर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, बोर्ड्स कैसे होने वाले हैं, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, वी डोंट नो एनीथिंग। सो द थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द थिंग्स विच यू हैव इन योर सिलेबस। एक बार वो पढ़ लो। जो आपको ये जो एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो रही है ना, तो वो मैं आपको बायो फिर वैसे अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली टीच करूँ। बट लेट मी, बिकॉज वी डोंट नो कि जो ये सिनेरियो है फिलहाल इस साल लॉकडाउन का, तो आपका बोर्ड हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि दिस ईयर दे द ऑथोरिटीज़ केम टू नो कि हाँ मार्च एंड तक कोरोना बढ़ जाता है तो बोर्ड नहीं हो पाता है। So we don't know the things right now. Okay, we can't say कि this is how the things will happen और ऐसे ही बोर्ड होगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो निकल गया है बायो का, हट गया है ना बहुत सारा सिलेबस। You know Ma'am, that? till now we are not informed anything. Okay. Ma'am, our teachers are telling that you should follow the whole book. Yes, Yes, definitely. ma'am. आपको पढ़ना सब कुछ है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि वी डोंट, दैट इज व्हाट योर टीचर इज सेइंग कि वी डोंट नो हाउ द बोर्ड्स विल बी दिस ईयर। सो यू हैव टू रीड राइट एंड लर्न एवरीथिंग। सो जो बेसिक नोट्स आपको चाहिए ना, तो सीबीएसई की जो एनसीईआरटी है, जो आप ncrt.nic.in ऐसा कुछ है, उस पर जब जाना तो उसमें आपके टेक्स्ट बुक्स भी हैं, आपके नोट्स भी हैं। नोट्स पे आप क्लिक करोगे, क्लास अपना 10th डालना, आपके सारे चैप्टर्स के नोट्स भी होंगे।
रीड देम, रीड योर टेक्स्ट बुक, रीड दोज नोट्स, और ध्यान में रखो जो क्लास में क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। सो आपको लिम्फ के बारे में ये जो ऑर्गन्स है वो आप नोट डाउन कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी ये चीज़ नोट कर सकते हो। जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें लिम्फ नोड्स बहुत मैटर करते हैं। सो यू जो सी दीज थिंग्स, ओके, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम नोट डाउन कर सकते हो आप। एनी अदर थिंग? सुप्रतिम, डाउट Now, क्लियर? what is that pairs patches written there? पेयर्स पैचेस जो होते हैं ना बेटा, वो इंटेस्टाइन में होते हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल रीजन होते हैं जो चेक पॉइंट की तरह काम करते हैं, Okay. ठीक है। Fine. So this is what regarding the circulation or the transportation in humans. Then we have transportation in plants. तो हमें xylem and phloem पढ़ना है, but I think time is showing me that now you have the another class after some time. So we have xylem, we have phloem to study in the next class. Then we have the excretion system. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next Yes, ma'am. next class we will see this transportation in plants. ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये छोटा सा है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे excretion in humans and excretion in plants. I think उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। Am I right? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will see to it, and then whatever your queries are there regarding this, just keep them with you, so that do lymph nodes produces WBC? Yes, they can. Okay. Okay, ma'am. Fine. Ma'am, Yes, beta. and which is more complicated? Transportation in humans or transportation in plants? I think humans. Okay, ma'am. Okay. फाइन। एंड आपको अभी तक कोई चैप्टर में कोई भी क्वेरी है, ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आया है? No, ma'am. Nothing. We have taken so much of time with this, so I think the parts must be clear. But still, extra जो है वो once the syllabus is over, then we will I will give you much more many things to be studied. Extra बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा आपको, don't worry. ठीक है? So this is what regarding. Then we will meet in the next class. So be safe for the whole week. And Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. goodbye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Have a nice day. Yeah, same to you. Beta.